আজকের এই ছবিতে যাকে দেখছেন, চলুন আজকে তার বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব। যারা বিশেষ করে সাউথ ইন্ডিয়ান সিনেমা দেখতে পছন্দ করেন, প্রায় প্রত্যেকেই হয়তো এই ফেসটার সাথে পরিচিত। তিনি হলেন একজন কানাড়া হিরো, দর্শন। যিনি দর্শন সঙ্গে সঙ্গে তিনি একজন অ্যাকশন হিরো নামে পরিচিত। হিরোর ডেফিনেশন বলতে আমরা কি বুঝি? হিরোর ডেফিনেশন বলতে আমরা বুঝি এমন একজন মানুষ যিনি সবসময় সুবিচার করবেন। শুধুমাত্র সুবিচার নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বেন, সুবিচার করবেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জনকল্যাণমূলক এবং সাধারণ মানুষের পাশে এক কথায় বলতে গেলে সবসময় থাকবেন। সিনেমায় আমরা তাকে এই চরিত্রেই কিন্তু দেখতে পাই। সেখানে অনেক তার অ্যাক্টিং থেকে শুরু করে তার অ্যাকশনের প্রত্যেকেই হয়তো হিরো। আমরা যারা আছি প্রত্যেকে তার এই অ্যাকশন তথা তার সিনেমার অ্যাক্টিং নিয়ে মুগ্ধ। কিন্তু রিয়েল লাইফে কি তিনি সত্যিই হিরো? চলুন আজকের ভিডিওতে আমরা সেটাই দেখব। তার সাউথ ইন্ডিয়ান সিনেমাগুলো কিন্তু সত্যি অতুলনীয়। অ্যাক্টিং, অ্যাকশন সবকিছুই। তার অ্যাক্টিং ক্যারিয়ার সবথেকে বড় পর্দায় তখনই আসে যখন প্রথম 2002 সালে তিনি ম্যাজেস্টিক নামক একটি সিনেমা করেন। এরপর ধীরে ধীরে কারিয়া, কালাসিপাল্লা, গাজা, নাভাগ্রহ, সারথি, ক্রান্তিবীর এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা তার বিখ্যাত কয়েকটা সিনেমা রবার্ট, কাটেরা এগুলো কিন্তু প্রত্যেকেই দেখেছে। এছাড়াও তার ইয়া জামানা এই সিনেমাগুলো কিন্তু খুবই হিট। কারণ যারা প্রত্যেকেই সাউথ ইন্ডিয়ান সিনেমা দেখেন তারা এই সিনেমাগুলো কিন্তু অবশ্যই দেখে থাকেন। কিন্তু জানেন কি, তিনি বর্তমানে জেলে রয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে জেলে কেন রয়েছেন? সিনেমায় তো তাকে আমরা অনেকবার অনেক চরিত্রে জেলে দেখেছি। সেখানে তিনি কোনো ভালো কাজের জন্য এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার জন্য জেলে গেছেন। ये नहीं है। इस तरह से जहरीले तेल बेचने वाले को नंदी ब्रांड के मालिक कृष्ण को कड़ी से कड़ी जाए, यही मेरी इस न्यायालय से गुजारिश है योर ऑनर। दैट्स ऑल योर ऑनर। सर, जानते हुए भी ये अपराध करने की हिम्मत कैसे की आपने? ठीक है, अब इस पर बहस करने के लिए कुछ नहीं बचा। आप अपने बचाव के लिए कोर्ट में कुछ कहना चाहते हैं? सर, करने की हिम्मत कैसे की आपने? ठीक है, अब इस पर बहस करने के लिए कुछ नहीं बचा। आप अपने बचाव के लिए कोर्ट में कुछ कहना चाहते हैं? सर, आपकी रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा है वो सब बिल्कुल सच है। वो तेल কিন্তু আজকের এই যে ঘটনাটা রয়েছে সেখানে তিনি হিরো হিসাবে জেলে নয় বা কোনো ভিলেনকে মারতে বা কোনো রকম ভাবে কোনো ভালো কাজের জন্য নয়, তিনি মার্ডার কেসের জন্য, একজন ব্যক্তিকে হত্যার কেসের জন্য তিনি বর্তমান জেলে। শুধু তাই নয়, সঙ্গে তার প্রেমিকাও জেলে রয়েছেন। আর যাকে তিনি হত্যা করেছেন সে কোনো একজন সাধারণ ব্যক্তি, তবে তিনি সাধারণ নয়, কারণ তিনি ছিলেন এই যে দর্শন রয়েছে এই হিরোর একজন ডাই হার্ট ফ্যান। অর্থাৎ তার জন্য জীবন দিতে সে পারে, তার প্রতি এতটা তার ভালোবাসা ছিল। কিন্তু কেন তিনি হত্যা করলেন, চলুন আজকের ভিডিওতে আমরা সমস্ত কিছুই দেখব এর সম্বন্ধে। আর ভিডিও শেষে আপনারা কিন্তু কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন যে ভিডিওগুলো আপনাদের কেমন লাগছে। But you cannot get things done, then listen to me for the next 1 minute. I'm going to share with you the 3 most important things about procrastination that nobody else will tell you. Procrastination is not your fault. You heard it right. Procrastination is just a symptom. It is not actually 2024 चित्रदुर्गा से 200 किलोमीटर दूर
बेंगलुरु के कामाक्षी पल्ल्या में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड की नजर नाले के पास पड़ी एक लाश पर पड़ती है जिसे कुत्तों का झुंड नोचने में लगा हुआ था। सुबह सुबह कोई भी ऐसा मंजर देखकर घबरा जाएगा, लेकिन उस सिक्योरिटी गार्ड ने बिना देरी किए फौरन लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस की एक टीम तुरंत उस डेड बॉडी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। बट चैलेंज ये था कि पुलिस को उस डेड बॉडी से ऐसी कोई भी आइडेंटिटी या चीज नहीं मिली थी जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। डेड बॉडी की प्रीलिमिनरी एनालिसिस से इतना समझ आ रहा था कि शख्स की उम्र 30-35 साल के करीब होगी और इसकी मौत को 24 घंटे से ज्यादा हो चुके होंगे। ऐसी कंडीशन में पुलिस पहले पता करती है कि आसपास के किसी पुलिस स्टेशन में क्या ऐसे किसी शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। सिंस ये बॉडी नाले के किनारे मिली थी, इसलिए जाहिर था ये कहीं से बहकर आई हो। इत्तेफाक से पुलिस को पता चला कि पास में एरिया के एक पुलिस स्टेशन में 33 साल के शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी मां ने दर्ज कराई है, जिसमें उनका बेटा शनिवार 8 जून से गायब है और उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस फौरन उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है और नाले से मिली उस लाश की शिनाख्त करवाती है। लाश पर मौजूद बचे खुचे कपड़े देख माँ का दिल दहल उठता है, क्योंकि ये लाश उन्हीं के बेटे रेणुका स्वामी की थी। रेणुका स्वामी अपोलो फार्मेसी की एक मेडिकल शॉप में जॉब करता था और रोज की तरह अपनी जॉब पर गया हुआ था, लेकिन 8 जून से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया था, लेकिन रेणुका की मौत कैसे हुई इसका जवाब सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मिल सकता था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई भी, लेकिन ऐसे खुलासे के साथ जिससे इस केस के तार ऐसे आदमी से जुड़ने वाले थे जिसने पूरे कर्नाटका को हिला कर रख दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स काफी भयानक थी। रेणुका स्वामी को पीट पीट कर मारा गया था, उसकी जुबान काट ली गई थी और जबड़े को तोड़ दिया गया था। शरीर पर अनगिनत चोट के गहरे घाव थे। रेणुका स्वामी मेडिकल शॉप में छोटी सी नौकरी करने वाला एक 33 साल का सीधा साधा इंसान था, जिसका ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था और ना कोई कंप्लेन, ना ही किसी से दुश्मनी और ना ही कोई विवाद। पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे शख्स से किसी को क्या दुश्मनी थी। वो इतना पैसे वाला भी नहीं था कि पैसे के चलते उसे किडनैप किया गया हो। सिंस ये कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं था, इसलिए मीडिया का भी इस पर कोई ध्यान नहीं गया। वहीं पुलिस भी इसे हर दूसरे केस की तरह ही इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तभी अगले दिन 10 जून को उसी पुलिस स्टेशन में अचानक 3 लोग पहुंचते हैं। राघवेंद्र, कार्तिक और केशव मूर्ति ये दावा करते हैं कि रेणुका स्वामी का मर्डर उन्होंने किया है। जिस केस पे पुलिस को ना ही कोई मोटिव और ना ही कोई क्लू मिला था, उसमें इतनी जल्दी अपराधी खुद चलकर पुलिस स्टेशन सरेंडर करने आ गए थे। उन तीनों ने बताया कि पैसों के लेन देन के चलते हुए झगड़े में उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। देखा जाए तो पुलिस को बिना मेहनत किए अपराधी मिल गए थे और केस खुद से ही सुलझकर क्लोज होने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन अचानक उस थाने में वहां के एसपी पहुंच जाते हैं। जब उनके सामने पूरा मामला रखा जाता है तो उनको अपराधियों के खुद से आकर जुर्म कबूलने की बात हजम नहीं होती। वो खुद से ही तीनों को अलग अलग बुलाकर पूछताछ शुरू करते हैं। कत्ल कैसे, कब और कहाँ किया, इन सवालों के जवाब तीनों ने अलग अलग दिए, जिससे एसपी समझ गए कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। लेकिन क्यों? इसके लिए तीनों की कॉल डिटेल्स और फोन की लोकेशन पता करने पुलिस की एक टीम लगा देते हैं। पुलिस ने जब तीनों की सीडीआर चेक की तो उसमें एक नंबर ऐसा मिला जिससे पिछले 2 दिन से उनकी लगातार बातचीत हो रही थी। जब उस नंबर की डिटेल्स निकाली गई तो वो नंबर किसी आम शख्स का नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के चैलेंजिंग सुपरस्टार दर्शन का था। इन 3 कातिलों का आखिर इतने बड़े फिल्म स्टार से कनेक्शन कैसे था? इस सवाल का जवाब पता करने के लिए पुलिस ने पिछले 2 दिन की दर्शन के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की, जिससे उन्हें पता चला कि बीते 48 घंटों में इन तीनों कातिल और सुपरस्टार दर्शन की लोकेशन एक ही थी। रेणुका स्वामी का मर्डर हो जाना, 3 लोगों का खुद से गुनाह कबूल करना और फिर उनका इतने बड़े फिल्म स्टार से कनेक्शन, इन सभी पॉइंट्स ने शक की सुई को अलग डायरेक्शन में मोड़ दिया था। एसपी को जब कुछ शक हुआ तो उन्होंने दोबारा तीनों से पूछताछ की, लेकिन इस बार कड़ाई से। उनमें से एक आखिरकार टूट गया और उसने ऐसा सच बताया जिससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई। It's now a high-profile murder scandal in full media glare. उस सच ने ऐसे राज से पर्दा उठाया जो सबकी सोच से परे था। More sensational details have emerged in the murder case involving Kannada actor Darshan. Welcome to the show. My name is Shashwat and you are watching The case of superstar Darshan. दर्शन का कंट्रोवर्सी से पुराना नाता रहा है। साल 2003 में
दर्शन की शादी विजया लक्ष्मी से हुई और फिर दोनों का एक बेटा भी हुआ। समाज के सामने यूं तो दर्शन की शादीशुदा जिंदगी अच्छी दिख रही थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद से दर्शन के अपनी वाइफ से संबंध बिगड़ने लगे और बिगड़े भी इस कदर कि 2011 में दर्शन पर उनकी वाइफ विजया लक्ष्मी ने मारपीट और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करवाया, जिसके चलते दर्शन को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जाना पड़ा। बट बात यहीं पर नहीं रुकी। साल 2016 में उनकी वाइफ ने ऑब्जेक्शनेबल बिहेवियर का आरोप लगाते हुए एक और कंप्लेंट फाइल की, लेकिन बाद में सेटलमेंट कर केस विड्रॉ कर लिया गया। साल 2021 दर्शन पर मैसूरू होटल के एक वेटर के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। हालांकि सीसीटीवी फुटेजेस को डिलीट कर और वेटर को 50,000 रुपए का कंपनसेशन देकर मामले को कवर कर दिया गया। साल 2022 एक फिल्म प्रोड्यूसर भारत ने दर्शन पर जान से मारने की धमकी देने का इल्जाम लगाते हुए पुलिस में कंप्लेन की। नवंबर 2023 दर्शन पर उसकी पड़ोसी ने पार्किंग को लेकर विवाद के चलते कुत्तों से हमला करवाने का आरोप लगाया, जिसके बाद दर्शन के अगेंस्ट एफआईआर भी फाइल की गई, लेकिन उस मामले को भी रफा दफा कर दिया गया। दर्शन और उनकी वाइफ विजया लक्ष्मी के टूटते रिश्तों की असली वजह 10 साल पहले दर्शन की जिंदगी में आने वाली पवित्रा गौड़ा थी। पवित्रा एक फैशन डिजाइनर और एस्पायरिंग एक्ट्रेस थी। शुरुआत में काफी हाथ पैर मारने पर जब फिल्म्स नहीं मिली तो उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद एक बेटी भी हुई, लेकिन कुछ वक्त बाद हस्बैंड से रिश्ते बिगड़ जाने के चलते वो बेटी के साथ अलग रहने लगी। वहीं दर्शन को अपनी फिल्म के लिए किसी नए चेहरे की तलाश थी और ऐसे में बाई चांस पवित्रा टकरा गई। कुछ रीजंस के चलते पवित्रा को वो फिल्म तो नहीं मिली, लेकिन वो दर्शन के काफी क्लोज आ गई। सालों साल सब कुछ चुपचाप चल रहा था, लेकिन नवंबर 2023 में पवित्रा ने अपनी बेटी खुशी के जन्मदिन का ये वीडियो पोस्ट किया। Happy birthday to you. जिसमें दर्शन केक कटवाते और डांस करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो ने फैंस के बीच 2015 से चली आ रही दर्शन और पवित्रा के अफेयर्स की स्पेकुलेशंस को हवा दे दी, लेकिन बवाल तब मचा जब इस साल पवित्रा ने यह रील पोस्ट की। इस रील के थ्रू पवित्रा ने अपने और दर्शन के रिश्ते को पब्लिकली शो कर दिया। यह रील न सिर्फ वायरल हो गई, बल्कि यह भी रिवील हो गया कि शादीशुदा होते हुए भी दर्शन का पवित्रा से 10 साल से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इस वीडियो से विजया लक्ष्मी भड़क गई और जवाब में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर पवित्रा के कैरेक्टर पर सवाल उठाए और अगली पोस्ट में उन्होंने इस कैप्शन के साथ अपनी फैमिली फोटो पोस्ट की। अब आप सोच रहे होंगे कि नाले में मिली रेणुका स्वामी की लाश का इन सब से क्या कनेक्शन है, बट ट्रस्ट मी, इस पूरे केस की जड़ यही से शुरू होती है। साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री में एक्टर्स को जिस लेवल का फैन से सपोर्ट और प्यार मिलता है, वो शायद ही पूरी दुनिया में किसी फिल्म स्टार को मिलता हो। इसी तरह दर्शन की काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है। उनके बहुत सारे फैन क्लब्स हैं। ढेर सारे लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, अपना आइडल मानते हैं। यही वजह थी कि पवित्रा और विजया लक्ष्मी के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग में विजया लक्ष्मी को दर्शन के फैंस की बहुत बड़ी लॉबी का भरपूर सपोर्ट मिला। ये वो फैंस थे जो दर्शन और पवित्रा के रिश्ते को गलत ठहराते थे और पवित्रा को उनके भगवान का परिवार तोड़ने वाली महिला कहते थे, जिसके चलते पवित्रा को सोशल मीडिया पर ढेर सारा हेट मिलने लगा। हजारों कमेंट्स में पवित्रा को उल्टा सीधा लिखा जाने लगा, जिस वजह से पवित्रा को मजबूरन अपना कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा। अब यहाँ से शुरू होती है रेणुका स्वामी की कहानी। कर्नाटका के चित्रदुर्गा में रहने वाला 33 साल का यह शख्स उन्हीं डाई हार्ड फैंस में से था जो एक ब्लाइंड सपोर्टर जैसे दर्शन को भगवान की तरह मानता था। सालों से वो दर्शन की सारी मूवीज हर कीमत में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाता था। जब पवित्रा ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया तो रेणुका स्वामी भी उन फैंस में से था जो इस रिश्ते के खिलाफ था और उसे लगता था कि जिस भगवान की वो पूजा करता है वो कभी अपनी पत्नी, अपने बेटे को धोखा नहीं दे सकते। वो पवित्रा के हर पोस्ट पर कमेंट करता, उसे गलत ठहराता, उल्टा सीधा लिखता और दर्शन से दूर रहने की धमकी देता। इत्तेफाक से जून फर्स्ट वीक में रेणुका स्वामी ने पवित्रा के एक ऐसे ही पोस्ट पर कमेंट कर उसे बुरा भला कहा और आपत्तिजनक भाषा का यूज किया। उसने ये कमेंट एक फेक आईडी बनाकर किया था, जिसे बाई चांस पवित्रा ने पढ़ लिया। पवित्रा इतना भड़क गई कि उसने कमेंट के रिप्लाई में लिखा भी, टाइम विल आंसर, जस्ट वेट एंड वॉच, वक्त जवाब देगा।
बस देखते जाओ। गुस्सा जब काबू के बाहर हो गया तो वो पहुंची दर्शन के पास और उससे कहा कि देखो कैसे कैसे लोग हमारे रिश्ते को लेकर उल्टा सीधा बोल रहे हैं और ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। पवित्रा के बार बार प्रवोक करने पर दर्शन ने उसे एश्योर किया कि वो इसको लेकर कुछ करेगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से सामने आया कि दर्शन के कहने पर उनके एक एम्प्लॉय पवन ने इंस्टा पर पवित्रा का फेक अकाउंट बना रेणुका स्वामी से चैट करने लगा। रेणुका स्वामी उस फेक अकाउंट को असली मान झांसे में भी आ गया और बातों बातों में एक मैसेज में उसने अपना नाम और एड्रेस बता दिया। एड्रेस का पता चलते ही दर्शन ने राघवेंद्र, जो उसके फैन क्लब का प्रेसिडेंट है, उसे स्वामी को किडनैप कर बेंगलुरु लाने का ऑर्डर दिया और साथ ही इस काम के बदले उसने 30 लाख रुपए भी दिए। 8 जून की सुबह चित्रदुर्गा में फार्मेसी जाते वक्त रास्ते में रेणुका स्वामी को रोका गया। उसे यह कहकर साथ चलने को बोला गया कि वो उसे दर्शन से मिलवाएंगे एंड उनसे मिलकर सोशल मीडिया पर पवित्रा पर किए गए अपने कमेंट्स को लेकर माफ़ी मांगनी होगी। रेणुका स्वामी को अंदाज़ा भी नहीं था कि माफ़ी की आड़ में उसके लिए एक जाल बिछाया गया था। राघवेंद्र और उसके साथी स्वामी को बेंगलुरु के आरआर नगर में लोकेटेड एक कंपाउंड में लेकर आते हैं और वहां शुरू होता है हैवानियत का असली खेल। पूरा दिन वो स्वामी को बेदम होने तक शेड में बांधकर बेल्ट और डंडों से बुरी तरह पीटते हैं। तभी देर शाम वहां दर्शन अपने साथियों के साथ पहुंचता है। अधमरी हालत में स्वामी की नज़र जब अपने हीरो पर पड़ती है तो उसे उम्मीद जगती है कि जैसे दर्शन अपनी मूवीज में आम आदमी के लिए दुश्मनों से लड़ जाता है, यहाँ पर भी उसका हीरो उसे बचाने आया है। लेकिन कहते हैं ना कि रील और रियल लाइफ में काफ़ी अंतर होता है और यह अंतर स्वामी की ज़िंदगी पर भारी पड़ने वाला था, क्योंकि दर्शन उसे वहाँ बचाने नहीं बल्कि ऐसे गहरे जख्म देने आया था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। स्वामी ने जिसे अपना भगवान समझा, उसने हैवान बनकर उससे इस कदर तड़पाया कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें स्वामी के शरीर पर 15 लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज थी। A recent autopsy report revealed that victim Renuka Swamy died from shock and hemorrhage. He was found with 15 wounds on his body. आपको जानकर हैरानी होगी कि जब रेणुका स्वामी को टॉर्चर किया जा रहा था तो उस वक्त वहां पर पवित्रा भी मौजूद थी। पूरा दिन चले टॉर्चर की वजह से आखिरकार रेणुका स्वामी दम तोड़ देता है। स्वामी की साल भर पहले ही शादी हुई थी और दोनों इस साल के एंड तक पेरेंट्स भी बनने वाले थे। उसकी वाइफ सहाना लगातार उससे कांटेक्ट करने का ट्राई कर रही थी, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसे खबर भी नहीं थी कि अब वो कभी अपने हस्बैंड को देख नहीं पाएगी। अगले दिन सुबह 3 बजे इन लोगों ने स्वामी की डेड बॉडी को गाड़ी में भरकर कामाक्षी पल्ले के एक नाले में फेंक दिया और फिर उसके बाद जो हुआ वो आपको पता है कि कैसे सिक्योरिटी गार्ड को लाश मिलती है। फिर वो 3 अपराधी अपना जुर्म कबूल करने आते हैं, जिससे ये सारा केस खुल जाता है। एक्चुअली में वो तीनों आदमी दर्शन के कहने पर सारा जुर्म अपने सर लेने गए थे और इस काम के बदले दर्शन ने उन्हें 5-5 लाख रुपए भी दिए थे। दर्शन अपने प्लान को फुल प्रूफ बनाने के चक्कर में खुद ही फंस गया, क्योंकि अगर ये तीनों अपराधी पुलिस स्टेशन ना जाते तो बहुत मुश्किल था इस केस का खुलासा होना। रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरा में 2 गाड़ियां और उनकी नंबर प्लेट रिकॉर्ड हो गई जो दर्शन की थी और उनका इस्तेमाल लाश को दफनाने के लिए किया गया था। पुलिस को इसमें खून के धब्बे भी मिले। इसके साथ ड्राइवर रवि ने खुद को सरेंडर कर पूरी वारदात की जानकारी दी। रवि वही ड्राइवर था जो स्वामी को चित्रदुर्गा से बेंगलुरु उसी जगह तक ले गया था जहां उसे टॉर्चर किया गया था। पुलिस को राघवेंद्र के पास से 30 लाख रुपए भी मिले जो दर्शन ने यह काम पूरा करने के लिए दिए थे। CDR और फेक अकाउंट से किए गए मैसेजेस भी रिट्रीव कर लिए गए हैं। सिंस ये एक हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए इसमें अपराधियों को बचाने के लिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का भी जबरदस्त अटेम्प्ट किया गया। लेकिन इस केस को लीड कर रहे ईमानदार और सख्त SP एंड कमिश्नर की वजह से ना सिर्फ ये केस इतनी जल्दी सॉल्व हो पाया बल्कि मीडिया के सामने भी आ गया। एज पर रिपोर्ट्स पुलिस ने अब तक दर्शन और पवित्रा को मिलाकर टोटल 16 लोगों को अरेस्ट किया है। इस केस में पुलिस ने पवित्रा को प्राइम एक्यूज्ड और दर्शन को सेकंड एक्यूज्ड बनाया है, क्योंकि वो पवित्रा ही थी जिसके उकसाने पर इस क्राइम को अंजाम दिया गया।
जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सो कॉल्ड सुपरस्टार दर्शन से जुड़ी और भी चीजें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि दर्शन का एक्स मैनेजर मल्लिकार्जुन जुलाई 2018 से मिसिंग है। मल्लिकार्जुन दर्शन का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था, लेकिन उसने धोखा देकर दर्शन के 2 करोड़ रुपए चुरा लिए, जिसकी वजह से कोर्ट केस चल रहा था। लेकिन पिछले 6 सालों से ना तो वो किसी कोर्ट हियरिंग में आया और ना ही पुलिस को उसके बारे में कुछ भी पता चला। नाउ एज पर स्पेक्यूलेशंस, जब दर्शन एक कमेंट को लेकर इस हद तक जा सकता है तो फिर उसको इतना बड़ा धोखा देने वाले का क्या अंजाम होगा। चैलेंजिंग स्टार दर्शन अपनी मूवीज में कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके हक की लड़ाई लड़ते हैं, उसके खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते दिखते हैं। बट असल जिंदगी में वो क्या है? पर्दे पर दिख रहे कैरेक्टर और रियलिटी के कैरेक्टर के बीच जमीन आसमान का फर्क है। यह केस मैसेज देता है कि हमें अपने आइडल्स, अपने आदर्शों को सोच समझकर चुनना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको जो दिखाया जा रहा है वही सच हो। तो ये था आज का केस, जो दिखाता है कि कैसे एक मामूली से मसले को एक फिल्म स्टार किस हद तक लेकर चला गया। एक ऐसा केस जिसमें एक डाई हार्ट फैन की मौत उसके ही सुपरस्टार के हाथों हो गई। उम्मीद है आपको इस केस से कुछ सीखने को मिला होगा। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें। जल्दी मिलते हैं अगले केस के साथ, और प्लीज रॉन्ड को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू। তো আজকের এই ভিডিওতে কিন্তু আমরা এটাই বুঝতে পারলাম যে আমরা যাদেরকে এই সিনেমা জগতে হিরো ভেবে থাকি তাদের মধ্যে প্রত্যেকে রিয়েল লাইফে কিন্তু হিরো নয়। রিয়েল লাইফে হিরো হতে গেলে নিজের ফ্যামিলির দিকে দেখুন, নিজের বাবা মাকে দেখুন, তারাই রিয়েল লাইফের হিরো। তাছাড়াও দেখুন আমাদের আর্মি যারা রয়েছে, কিষান যারা রয়েছে, এরা প্রত্যেকেই কিন্তু এক একজন তাদের জীবনের হিরো। শুধু তারাই নয়, এই পৃথিবীতে প্রত্যেকটা মানুষ যারা সৎভাবে খাটছে, যারা সৎভাবে টাকা আয় করছে এবং সৎভাবে নিজেদের পরিবারকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে, তারা প্রত্যেকেই কিন্তু এক একজন হিরো। প্রত্যেকেই কিন্তু এক একজন রিয়েল লাইফ হিরো। এইরকম কোনো সিনেমার বা রিল লাইফ হিরো তারা নয়। তো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটা এইটুকুই। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করো। চ্যানেলে প্রথম হলে চ্যানেলটাকে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও।